Profil Garg, and I've been waiting for this moment ever since I knew how big speaking on this platform was. And today I'm going to tell you what got me here. So I'm the owner of my blog Kanpur Food Explorers, which has more than 51,000 followers. I own the cafe Central Courtyard. I run a magazine with the name of Nevala, and I'm a restaurant consultant. So I've done my schooling from Methodist, and I've graduated from India's #1 not-for-profit university, Amity. When they say not-for-profit, they mean it. It was of no profit for me. But my hobbies include breakfast, lunch and dinner. मुझे बचपन से एक ही बात खाई जा रही थी कि मैं कल खाऊंगा क्या. तो मेरा I was always a foodie and my passion was always driven around food. मुझे खाना पसंद था, मुझे नई जगह ट्राई करना पसंद था, and I always had this knack of suggesting people different places and telling them to try different cuisines. So my life was surrounded with food, around food. हमेशा मेरे घर वाले कहते थे एक्सेल करो चीज़ों में, एक्सेल करो, and I am excel now, just 2 inches away from being a double XL. And so my passion was always food. So once I went to Indore, and Indore is supposed to be the vegetarian food capital of India. तो मैंने उधर डिस्कवर किया कि उधर 2 किलोमीटर के रेडियस में 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं. So what came to my mind was कि कानपुर में भी ये ट्रेंड इवेंचुअली आना ही आना है, क्योंकि we have a lot of people in Kanpur who are foodies. So why not start a blog if I can recommend people different things which they like, and जो लोगों को पसंद है मुझे अगर पता है तो why not turn it into a blog. So I started my Instagram page in 2017 when I was in college. So what I used to do was मैं Saturday Sundays को कानपुर आता था after my college, and I used to make content for the whole week. तो इस तरीके से मेरे पेज की एक स्टार्ट हुई. तो the total purpose of my page was to build a network and help the restaurateurs to get to a lot of people. तो मैंने जिस दिन पेज स्टार्ट किया, it just took only 1 month to reach 5,000 followers. In 2017, it was a very big deal to get 5,000 followers in 1 month, and we had around 10,000 followers in the 3 months. तो ये चीज मैंने अपने फादर से सीखी थी कि building network will always help you in the long run. तो मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा social था. I had a lot of friends in school, college, even in my coaching centers. I used to socialize and I used to go to restaurants and actually ask them कि उन्हें मार्केटिंग में क्या प्रॉब्लम आ रही है. तो मैं हमेशा उनको हेल्प करने का ट्राई करता था. सो दिस वाज माय हाउ कानपुर फूड एक्सप्लोरर स्टार्टेड. सो इवेंचुअली 1 साल हो गया मेरे पेज को, एंड आई डिडंट यूज टू चार्ज एनी ऑफ द रेस्टोरेंट्स. सो आई वांटेड टू डू समथिंग फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन इन एन एनजीओ नेम पहल इन 80 फीट रोड. तो मैंने जितने भी रेस्टोरेंट्स की मार्केटिंग की थी, आई डिडंट चार्ज देम एंड आई आस्क्ड देम कि हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहते हैं उनके साथ. सो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी, यू जस्ट गिव मी फूड फॉर 60 पीपल. तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, बीट लैंडमार्क, बीट एनी बिग ब्रांड, दे हेल्प मी. उनने मेरे लिए सारी चीजें अरेंज की, एंड वी डिड अ क्रिसमस पार्टी विद ऑल द चिल्ड्रन, जिसमें उन्हें खिलाया पिलाया. We gave them winter clothes. हमने उन्हें आगे के लिए केटल वगैरह सब कुछ दी. So मेरा हमेशा से एक ही एंगल था कि I wanted to do something for the society and help people. So मेरा कॉलेज भी अच्छा चल रहा था. My ultimate goal in life was to give my GMAT exam and मैं बाहर जाके MBA करके settle हो जाऊँ. But life is very unpredictable. और in 2018 Feb, my father passed away due to a cardiac arrest, and all my dreams were just shattered. एकदम से मतलब सब कुछ चेंज हो गया. I lost the shoulder on which my dreams were relying on, and मेरे लिए एकदम से एक फेज आ गया कि अब तो मेरे सारे सपने खत्म हो गए हैं, और I just lost my father, वो भी एकदम सडनली. सो मैं एकदम
काइंड ऑफ मतलब बहुत डिप्रेस हो गया, एंड आई वाज नॉट एबल टू कोप अप विद ऑल दिस. सो माय मदर हेल्प मी इन दिस. उन्होंने मुझे बहुत समझाया. शी टोल्ड मी कि जब बुरा वक्त होता है उसके बाद ही अच्छा वक्त आता है, और अगर इस चीज को लेके परेशान हो जाओगे तो यू वोंट बी एबल टू अचीव एनीथिंग इन लाइफ. तो आई हैड टू ऑप्शंस. वन वाज टू join my father's business, and the other was to do something on my own. And I took the road less traveled by. I chose food. I thought कि मुझे अब जो भी करना है जिंदगी में, it has to be around food and it will be around food. So I started commercializing my page. मैंने फिर एक आइडिया लेके आया. So मुझे बचपन से बहुत शौक था कि खाने से रिलेटेड जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं उनका रेवेन्यू मॉडल पढ़ने का, वो कितना कमा रहे हैं, इंडस्ट्री में कितने मार्जिन हैं, ये सब का मुझे बहुत शौक था. तो मैंने जोमेटो का भी पढ़ा था. तो जोमेटो हैज अ जोमेटो प्रो सर्विस इन बिगर सिटीज. तब कानपुर में नहीं था. एंड कानपुर पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डिस्काउंट्स. मतलब व्हाट आई हैव सीन ओवर टाइम, कानपुर में डिस्काउंट के लिए 100 लोग करते हैं इस दिन में. सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील. तो I thought कि why not bring the magazine up which displays good food from your city, has discount coupons, has excellent photography, and it could be used something to take pride of Kanpur. कि कानपुर में क्या स्ट्रीट फूड अच्छा है, हमारे पास क्या रेस्टोरेंट अच्छे हैं, और उसकी डिस्काउंट कूपन्स. So I thought of coming up with my magazine निवाला. उसमें हम लोग ने अराउंड 80 रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड जॉइंट्स दिखाए. आई गॉट अ फोटोग्राफर फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी एंड वी स्टार्टेड बिल्डिंग इट अप. तो मैंने बचपन से ये सीखा था कि अपने पेरेंट्स से कि ऑलवेज ट्राई टू हिट द बिगेस्ट शार्क फर्स्ट. तो मैंने कानपुर के सबसे बड़े जो होटेलियर रेस्टोरेंटियर हैं, आई जस्ट गॉट इन टच विद हिम एंड आई शोकेस्ड माय आइडिया एंड ही लव्ड इट. तो हम लोग ने सबसे पहले ऑनबोर्ड उन्हें लिया. देन वी वेंट टू डिफरेंट रेस्टोरेंट, टोल्ड देम कि ये हमारा आइडिया है एंड वील डू इट. सो ऐसे निवाला का आइडिया और उस पर वर्किंग स्टार्ट हुई. देन वी वेंट टू दिल्ली. उसके लिए बहुत अच्छा फूड स्टाइलिंग के लिए सामान लेने एंड ऑल, एंड वी फाइनली कंपाइल्ड अप निवाला एंड इट वाज लॉन्च्ड at a price of $9.99. And trust me guys, I sold more than 2,000 copies of it, which was a very big number in Kanpur. So then I was thinking कि if I can market other people's restaurant, why not open a restaurant for myself, जो मैं खुद चलाऊं, मैं खुद मार्केट करूं और मैं खुद उससे कुछ बड़ा करूं. So मुझे ये लगा कि एकदम से बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल के मार्जिन्स ना समझ के, मुझे सोर्सिंग नहीं आती, बहुत सारी चीजें नहीं आती, तो आई शुड लर्न इट बिफोर ओपनिंग अ बिग रेस्टोरेंट. सो आई टुक अ फ्रेंचाइज और मैंने बिरहाना रोड में आफ्टर अ लॉट ऑफ सर्च की कहाँ कैफे खोलना चाहिए. सो आई थॉट कि बिरहाना रोड इज लैगिंग बिहाइंड इन रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज. तो मैंने उधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला. इट वाज अ 150 स्क्वायर फीट कैफे ओनली and it had Italian cuisine in it. तो मैंने उसका इनॉग्रेशन किया. So I wanted to learn the business from both sides, कि एक कस्टमर किस पॉइंट ऑफ व्यू से रेस्टोरेंट में जाता है एंड एक रेस्टोरेंट वाले को क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या मार्जिन होते हैं, उसे मुझे ये दोनों चीजें समझनी थी. तो इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया एंड वी लॉन्च्ड बिजी बीन. And it was a great success and everything was going as per my plan. बहुत अच्छा कैफे चल रहा था. My magazine was doing good. हम उसका सेकेंड एडिशन निकालने के लिए रेडी हो गए. We were working on it and मेरा सोशल मीडिया वाला काम भी अच्छा चल रहा था. So with that I started my social media marketing agency. We were working on it and it got a lot of clients. We had all the big guns. Even from other industries than food, so everything was going very good. फिर मैंने देखा मेरे कैफे के मेन्यू में इटालियन के साथ चाइनीज भी आ गया. That was when COVID struck. तो एकदम से कोविड आ गया एंड
कोविड जब आया, लॉकडाउन के पहले ही हम लोग के 2 महीने पहले से सेल्स वेंट डाउन लाइक क्रेजी, क्योंकि एवरीबॉडी हैड द फियर कि बाहर जाके नहीं खाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। रेस्टोरेंट्स सबसे ज्यादा मुझे लगता है लॉकडाउन में जो हिट हुआ है वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हुआ था, क्योंकि उस सबसे पहले कैफेज ही बंद कराए गए थे। सो लॉकडाउन हिट अस और इवेंचुअली लॉकडाउन हो गया एंड आई वाज वेरी डिप्रेस्ड अगेन कि अब तो नहीं हो पाएगा फिर से। तो लॉकडाउन में कैफे बंद हुआ। सो मुझे 1 हफ्ता लग गया उस चीज से कोप अप करने में, पर मैंने सोचा कि अब ऐसे दुखी रह के तो कोई फायदा नहीं है। वाई नॉट प्लान माई कैफे नाउ, जब मेरे पास इतना टाइम है, आई एम जस्ट एट होम। सो मैंने उसी दिन एम कर लिया कि माई नेक्स्ट टारगेट इज टू ओपन अप अ बिग कैफे। तो मैंने उसी दिन से पिंटरेस्ट में मूड बोर्ड बनाया। मैंने सोचा था कि अगर मैं अपना कैफे खोलूंगा उसका इंटीरियर डिजाइन भी मैं ही करूंगा, उसके एक डिश के बारे में प्लानिंग करूंगा, उसका मार्जिन समझूंगा, सब समझूंगा। तो मैंने इस चीज पे वर्किंग करना स्टार्ट की एंड बिलीव मी, मैंने अपना कैफे खुद डिजाइन किया। From a 150 square feet cafe, we went to a 5,000 square feet cafe. From an annual turnover of 3 lakh rupees to an annual turnover of 3 crore rupees, we made it big and all by myself. So एक बहुत बड़ा पार्ट इन सब चीजों में जो रोल प्ले होता है कि आप बुरे टाइम में कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं। यू डोंट हैव टू सिट बैक एंड सिर्फ आपने सोच लिया कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो उससे कुछ भी नहीं होना है। पर्सनली आप लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस होती होगी, मुझे मिडनाइट क्राइसिस होती है रोज। तो मैं बहुत परेशान टाइप का रहता हूँ, लेकिन हमेशा से यही सीखा है और सिखाया गया है कि बुरे टाइम में आपको कुछ अच्छा करना है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हाउ सेंट्रल कोर्टयार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। फिर जब मेरा कैफे खुला, यू गाइस वोंट बिलीव कि 1800-1900 लोगों ने इंस्टाग्राम पे उसके ओपनिंग की स्टोरीज डाली। दिस वाज ऑल बिकॉज क्योंकि मैंने एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया था लोगों के साथ एंड पीपल वर वेरी फॉन्ड एंड एक्साइटेड कि मेरा कैफे आ रहा है। सो वी स्पेंड 0 ऑन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। एक होर्डिंग नहीं लगवाई हम लोगों ने, 1 भी रुपए FM एड्स में नहीं दिए, कुछ नहीं किया। और whole marketing was done on Instagram, not by us, by you all. So it was just because हम लोग ने मतलब मैंने बचपन से अच्छा लोगों से व्यवहार मेंटेन किया था and people were fond and they were waiting कि मेरा कैफे खुले। So Central Courtyard जब खुला, it became the most Instagrammable place. We had selfie corners in every point. It was done in a way कि लोगों को हर जगह फोटो खींचने को मिला एंड फूड वाज आल्सो वेरी इंस्टाग्रामेबल। तो इस तरीके से सेंट्रल कोर्टयार्ड का हुआ। देन आई आल्सो केम इन, मतलब मुझे इस इंडस्ट्री की नॉलेज काफी हो गई थी। अच्छा, आप लोग में से कितने लोगों को लगता है रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 50% का मार्जिन? 80%। The actual net margin is around 25 to 30% when you come to restaurant. ये एक माइंडसेट डेवलप हो चुका है। मतलब मुझे भी बचपन से ये कहा गया था कि आधे का मार्जिन है, लगता ही क्या खाना ही तो है और ये सब, बट इट्स नॉट लाइक दैट। यू हैव टू हैव द नॉलेज अगर रेस्टोरेंट खोलना। और एक चीज और लोगों के माइंडसेट में है कि रेस्टोरेंट वो खोल सकता है जिसे खाना बनाना आता है या जिसे खाने का पैशन है, सब हो जाता है, या कुछ नहीं कर रहा है तो रेस्टोरेंट खोल लो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स वेरी टफ, बी इट सोर्सिंग, बी इट उसकी मार्केटिंग या स्टाफ मैनेज करना, लोकेशन। इट कम्स विद अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको पहले समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी आप एक रेस्टोरेंट खोल सकते हो। वरना आप देखिए, अगर कानपुर में भी आज 100 रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं तो 80 बंद हो रहे हैं क्योंकि उन्हें चलाना ही नहीं आता है। इस इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि इफ यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ आप नहीं सर्वाइव कर पाओगे। इवन स्विगी एंड जोमैटो, मतलब लोगों को स्विगी जोमैटो पे काम करना बहुत पसंद है, बट फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट उसमें इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है। दे आर चार्जिंग यू 28% कमीशंस एंड उसमें उन्हें
कमीशन के अलावा यू हैव टू गिव डिस्काउंट्स एंड द डिस्काउंट इज टोटली बॉर्न बाय यू. सो अगर आप एक 200 रुपए का ऑर्डर कर रहे हैं, सो आई एम गेटिंग जस्ट 80 रुपीज आउट ऑफ इट. यू आर गेटिंग द डिस्काउंट एंड स्विगी जोमैटो इज गेटिंग द कमीशन. तो ये सब चीजों से समझना और फिर बिजनेस करना इज ऑलवेज बेटर. तो मेन बात रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में ये है कि यू शुड लर्न थिंग, और अगर आपको बड़ा रेस्टोरेंट भी खोलना है, यू शुड गो फॉर अ स्मॉलर वन फर्स्ट, फिर आप इवेंचुअली बड़े रेस्टोरेंट की तरफ जाइए. कमिंग टू रेस्टोरेंट कंसल्टेशन, मैंने जब ये कैफे अपना खोला, सो आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैं किचन में जाता था, आई यूज्ड टू सी थिंग्स कैसे होती है, कैसे स्टाफ का क्या माइंडसेट होता है, वो कैसे उसकी वर्किंग देखना चाहता है, कैसे क्या वर्किंग मार्केटिंग में होती है, सेल्स में होती है, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर सेल्स उनसे रिव्यू लेना, उस पर वर्क करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर मैं सोचा कि व्हाई नॉट कम इनटू रेस्टोरेंट कंसल्टेशन इफ आई नो एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच. तो आई finally came into restaurant consultation. I've consulted more than 10 projects in Kanpur and outside. We are doing some projects right now also. So my talk just wants to say is कि हार नहीं माननी है. आपको जब भी मौका मिले, you have to work and nobody is going to work for you. Build a good network. खुद के लिए मेहनत करो और हार ना मानो. That is how you will get over it and how this is how you will succeed. I'll end my talk with some of the lines written by me. मेरा सफर आसानियों से भरा नहीं, पर हालातों से मैं कभी डरा नहीं. माना सफर मेरा थोड़ा तीखा है, राहों का असर मैंने सीखा है, लेकिन बहुत कुछ करना है बाकी, क्योंकि गिर के उठना मैंने सीखा है. थैंक यू.